Hello friends, welcome once again. Now, if you remember in the previous videos, I've been emphasizing that if you want to make a tall building, you ought to have a very strong foundation. In the same way, your aim is also very lofty. 2 stars on the shoulder. Military leadership में आप officer बनना चाहते हो, Army, Navy, Air Force, a big aim, and this also has to have a very strong foundation, very strong foundation. And as conveyed by ex-commandant selection center south, the clearance rate is very low. It is 3.6%. so your effort has to be of that magnitude. It cannot be very oversimplified कि आपने 4 set TAT WAT ठीक कर लिए. No, you have to work on your personality. I'm re-emphasizing again and again to tell you the clearance rate is 3.6 as communicated by commandant selection center south. So you take that figure very seriously. इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या रास्ता इख्तियार कर रहे हो, you have to be very clear. वरना आप टाइम वेस्ट करोगे, मनी वेस्ट करोगे, एफर्ट वेस्ट करोगे, लेकिन नतीजा नहीं आएगा. 3.6. स्वामी विवेकानंद का इस लाइन को मैं बार रिपीट कर रहा हूँ. One of the greatest lessons that I have learned in my life is to pay as much attention to the means of work as to the end. And it appears to me that all the secret of success there, that is to pay as much attention to the means as to the end. इनके बारे में बार मैं बोल चुका हूँ. इसका रेफरेंस मैं आई बटन में ऊपर दिया हुआ है. You can go and watch those videos. And in the series of right strategy to prepare for the SSB interview, आज मैं आपको एक टॉपिक लेने वाला हूँ जो है डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी. मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि रीजनिंग एबिलिटी, जिसको कि मदर ऑफ ऑल OLQs बोलते हैं, मतलब इन 15 के 15 OLQ जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है रीजनिंग एबिलिटी. और आपको ये भी पता है साइकोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं कहाँ पे अटकते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास? रीजनिंग एबिलिटी. एंड GT और इंटरव्यू ऑफिसर के पास इट इज ऑन द इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कोर्स इज अ कॉमन फैक्टर इन ऑल 3 टेक्निक. तो ये बार हर कोचिंग में आपको ये बोला जाता है कि रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल OLQs. और अगर रीजनिंग एबिलिटी मदर ऑफ ऑल OLQs है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस मदर ऑफ ऑल OLQs को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे इसको बिल्ड कर रहे हो. क्या आपको पता है कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उससे ये मदर ऑफ ऑल OLQs बिल्ड हो रहा है कहीं, या जो है वो भी खराब हो रहा है? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगर आपकी रॉन्ग कोचिंग हो जाए तो आपका जो लेने के देने पड़ जाएंगे. डेड बॉडी का ड्रामा जब बनाते हो तो स्ट्रेट अवे वो रीजनिंग के साथ खिलवाड़ है. जब आपको फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर वाला काम करते हो, स्ट्रेट अवे रीजनिंग के साथ खिलवाड़ है. जब आप लोड नहीं उठाऊंगा, दूसरों से उठाऊंगा, रीजनिंग एबिलिटी क्या उसके पीछे तर्क है. सो प्लीज बी केयरफुल. मदर ऑफ ऑल OLQs के साथ छेड़छाड़ नहीं करवाना किसी भी कोचिंग से, ना मुझसे ना किसी और से. सो ना, इससे पहले कि मैं रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर बात करूं और आपको बताऊं मेरा अपना अभिप्राय क्या है इसके ऊपर, आई विल रिक्वेस्ट टू प्लीज हैव ए लुक एट दिस पिक्चर फॉर 30 seconds एंड आई विल रिक्वेस्ट टू write a TAT response on this. What led to the situation, what is currently happening, what is the final outcome. Please take 4 minutes, उससे ज़्यादा मत लेना. You can pause this video, write it and post it here. I will use it in the subsequent video to communicate something. तो मुझे कुछ responses चाहिए and I'll see कि अगर कोई responses worthwhile लगा तो I'll publish them in the video, as well as maybe I'll consider offering you a discount depending upon what is the quality of response that you get. 3/5 को I'll consider. So I request you to kindly post your responses and put it in the comment box below. Now let's see the definition of reasoning ability. I think all coaching centers would have conveyed this. Only thing is they convey this definition but they are not working on it, because we'll see. Reasoning ability, it is the ability of the candidate to grasp the essentials well. तो आप मुझे ये बताना, बिल्कुल विवेकानंद ने बोला प्लीज पे अटेंशन टू द मीन अडॉप्टेड. तो आप मुझे बताना कि आप कैसे इस स्किल को अपने अंदर बढ़ा रहे हो, कैसे कर रहे हो. और अगर आपकी जगह कोई कोचिंग में जा रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या वो सुपरफिशियल पे लगे हुए, ऊपर TAT WAT में लगे हुए, या नीचे फाउंडेशन पर काम कर रहे हैं, चेक करना. essential well and to arrive at conclusions. आप किस तरह से निष्कर्ष पर आते हैं? by rational thinking. इसका मतलब है आपका rational thinking को डेवलप करना ही पड़ेगा, because reasoning ability is a mother of all OLQ. तो आप इसमें अंडरलाइन करो और मुझे बताओ कि आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कोचिंग में कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग इट? हो भी रहा है ये? सोच कर देखना, क्या रोड मेमोरी करने से ये डेवलप होगा?
साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा लड़के लड़कियां जो बॉर्डर लाइन के जो गड्ढे हैं वो तो गधे तो जाएंगे, जो some people who can actually do it they are not able to do it because यहाँ सही का अटक जाता है। आपको मतलब गलतियाँ क्या करते हैं वो देखेंगे बाद में। So reasoning ability includes receptivity, inquiring attitude, logical reasoning and seeing essentials of a problem। तो आपको receptivity का मतलब क्या है, आपको you have to be alert, your concentration span, your attention span, your focus has to be there, otherwise you will not be developing the skill of receptivity। आप ऐसे हम लोगों के कोचिंग वालों के इनपुट से चले जाओगे। सेकंड इज क्या आपके अंदर इंक्वायरिंग एटीट्यूड है, मुझे बताना है, नहीं है तो आप क्या कर रहे हो ना, क्या आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब लूप टू चलाना, क्या लूप टू मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। एंड अगर एक सिचुएशन दे दिया तो कैन यू सी द एसेंशियल्स प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल इन द लास्ट स्लाइड आई हैव गिवन यू दिस पिक्चर, और मैंने आपको बोला है कि आपको स्टोरी लिखने के लिए अगर आप लोगों ने लिख दिया है तो उसको देखो जरा कि क्या इस पिक्चर को देखकर हैव यू बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट योर रीजनिंग एबिलिटी। Because reasoning ability is your ability which is in other language management and leadership के भाषा में बोलते हैं, it is critical thinking, analytical thinking, your ability to identify the root cause of any issue। So इस पिक्चर का जो response है उसको आपने अगर लिख दिया है तो जरा इसमें देखो कि क्या वो तर्क संगत है। I will anyway make the video based on your comments। So the ability of the candidate to grasp the essential value to arrive at conclusion by rational thinking, reasoning ability includes receptivity, inquiring attitude, logical reasoning and seeing essentials of a problem, mother of all OLQs। Now ये एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, अगर मैं पूछूँ क्या हो रहा है तो ये ना ज़्यादातर क्लास में भी लड़के और लड़कियाँ बोलते हैं सर वो टमाटर काटा जा रहा है। ओके बिल्कुल सही बात है, टमाटर काटा जा रहा है, अपना भी ओपिनियन बताना। ये क्या हो रहा है, बोला सर ये भी टमाटर काटा जा रहा है। मैंने कहा फिर दो ध्यान से देखते, फिर बोलते हैं सर पहला वाला चाकू अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं है, बोलता सर वो क्योंकि उसका जो टमाटर है वो एकदम पिचक रहा है। मैंने कहा क्यों, कैसे पता चला तुमने, हैव यू यूज द चाकू। नो, बोलता चाकू तो यूज नहीं किया, सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन फील द सेकंड चाकू इज बेटर देन द फर्स्ट चाकू। मैंने कहा अच्छा कैसे पता चल रहा है, तो बड़ा क्लियर बोलते हैं कि सर इनका ये जो फर्स्ट चाकू है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द फर्स्ट चाकू, इस चाकू का ये आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है, तो इसके आउटपुट को देखकर चाकू के शार्पनेस को पता चल रहा है, और ये सेकंड वाला है और ये सेकंड का आउटपुट है और उसको देख के पता चल रहा है। सो दैट्स वेरी लॉजिकल। मैंने कहा अच्छा अगर फर्स्ट चाकू, इफ यू वांट अ चाकू व्हिच वन यू विल यूज, तो बोलते सर हम तो सेकंड यूज करेंगे। बोला अगर मान लो फर्स्ट को सेकंड जैसे बनाना तो क्या करना, सो वेरी सिंपल, इसको घिसना पड़ेगा, और घिसोगे तो कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, गर्म होगा। तो दैट वाज वेरी लॉजिकल। बट द सवाल इज कि अगर इतना अच्छे से आपको ये समझ में आता है कि द चाकू नंबर 1 इज नॉट शार्प सिंपली बाय ऑब्जर्विंग द प्रोडक्ट ऑफ इट एंड सिंपली बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन आपको ये पता चलता है कि सेकंड चाकू का धार अच्छा है, तो और अगर फर्स्ट चाकू को सेकंड की तरह बनाना तो आपको इसको घिसना पड़ेगा। बाय द सेम लॉजिक जब एक बंद दिमाग से आप TAT WAT लिखते हो तो इसका प्रोडक्ट को देख के पता चल जाए कि दिमाग चलता नहीं है, और उसी तरह से एक चलते हुए दिमाग से, एक शार्प दिमाग से जब रेस्पॉन्स लिखोगे TAT WAT SRT GTO फट्टा बल्ली, पता चलता है कि इसमें शार्पनेस है। अभी आज एक मेजर प्रॉब्लम तुम ये क्या कर रहे हो कि तुम अपने रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप नहीं करना, अपने बुद्धि के क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिस्क्रिमिनेटरी स्किल, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कुछ डेवलप नहीं करना। आप क्या कर रहे हो कि कोचिंग में जाके इस तरह के बंद दिमाग को इस तरह के रेस्पॉन्सेस चिपका देते, बोलते ये हमारे ISO सर्टिफाइड है, ये ब्रांडेड SSB है, ब्रांडेड TAT है, 50 कहानी है, इसको रट लो, SSB रेकमेंड कर देगा। कैसे कर देगा, जब तुम्हें सिंपल विजुअल ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि चाकू नंबर 1 इस तरह से नहीं काट सकता क्योंकि इसमें धार नहीं है। अब तुम क्या कर रहे हो, चाकू नंबर 1 को धार नहीं लगा रहे, लेकिन आप अच्छे कटे हुए वेजिटेबल इसके सामने रख देते हो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन दी SSB। आई डोंट नो इफ यू हैव अंडरस्टूड मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बताना, मैं जो कहना चाहता हूँ समझ में आ गया। सिंपल बाय ए विजुअल एक्सप्लेनेशन द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ग्रास्प द एसेंशियल व्हेन एंड टू अराइव एट कंक्लूजन बाय रैशनल थिंकिंग। तुमने बड़ा लॉजिकली बोल दिया कि सर इस चाकू में मैंने टच तो नहीं किया, आई हैव नॉट यूज्ड दिस चाकू, बट सिंपली बाय लुकिंग एट द आउटपुट आई कैन से दिस चाकू इज नॉट देयर। बाय द सेम लॉजिक द GTO इंटरव्यूइंग ऑफिसर इन साइक सिंपली बाय लुकिंग एट योर आउटपुट, जो भी आप रेस्पॉन्स दे रहे हो वो रेस्पॉन्स को देख के आपके दिमाग की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग को 2 की तरह ना बना के आप 1 दिमाग को 2 के कटे हुए प्रोडक्ट ले जा रहे हो, ISO सर्टिफाइड कहानियां रट के। दैट इज द प्रॉब्लम। सो आपको क्या करना है, आपको इस चाकू
को घिसने की तरह आपको भी अपने आप को घिसना पड़ेगा। जब आप घिसोगे, आपके अंदर के सड़े हुए आलू, बोथ जीवन के भी और एसएसबी को कोचिंग के भी, जब ये दोनों निकलेगा, आपके अंदर दो कचरा है, एक जीवन का कचरा है, सड़ा हुआ आलू, जोहारी विंडो Q3 में जो पड़ा हुआ है, एंड Q1 जो ब्लाइंड एरिया है उसको भी हटाना है, प्लस जो कोचिंग का कचरा डाल रखा है ISO वालों ने उसको भी हटाना है। ये दोनों जब हटाओगे, और इसको दोनों के हटाने के लिए एफओसीपी में जब आते हो तो दैट्स वे द फाउंडेशन कोर्स की हम बात करते हैं कि यू हैव टू गो थ्रू दिस, अदरवाइज तुम्हारा, मुझे प्रेशर आता है कि तुम लोगों को सिखाने के लिए, मुझसे तो मैं शॉर्टकट तो दूंगा नहीं, लेकिन आप लोग मुझे झेल नहीं पाते बिकॉज आपके अंदर कचरा इतना फंसा हुआ है। किसी ने बोला डेड बॉडी कर दो, किसी ने बोलता कि 10 कमांड टास्क कर लो, इसे दिखा दो, कोई बोलते 5 दिन में तुम्हारे को सिग्नेचर कोर्स करा देंगे और आपको एकदम कर देंगे। तो इतना गंद भर दिया आपके अंदर कि योर लॉजिक सिस्टम इज फेलिंग। सो कैसे आप मेरी ट्रेनिंग को एफओसीपी विच इज सो लॉजिकल, उसके लिए आपका ब्रेन हैज टू बी अलर्ट एंड एक्टिव। ये आपके अंदर के शक्तियों को बाहर निकालना है। मतलब मेरा काम आपके अंदर की उन शक्तियों को जगाना है जिसके कारण आप रेकमेंड हो अपने दम पे, ना कि कोचिंग के दम पे, मेरे दम पे नहीं, अपने दम पे अफसर बनना है। So the ability of the candidate to grasp the essential when to arrive at conclusion by rational thinking, ये आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं। मेरी मर्जी चलेगी तो मैं तो डेड बॉडी का ड्रामा करा दूंगा, लोड नहीं उठवाना बोलूंगा फट्टा छोड़ना नहीं, मैं उल्टा पुल्टा करा दूंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इसका फीडबैक मुझे देना, उसके ऊपर मैं अगला वीडियो बना दूंगा। एंड जब आप इसको करोगे, जब आपका ये चाकू, बुद्धि रूपी चाकू को घिस दोगे एसएमएल के थ्रू, देन आपका माइंड विल कम अंडर द एज अ सबसर्वेंट टू द इंटेलेक्ट। आपके बुद्धि के अधीन आपके मन को लाना पड़ेगा, तभी आपका रीजनिंग डेवलप होगा। आज कोचिंग ने आपका इतना डैमेज कर दिया है, मुझे बोलते हुए दुख होता है बिकॉज मेनी ऑफ देम आई नो, आजकल नाराज है मुझसे वो लोग क्या करते हैं, आपके इंटेलेक्ट को बाईपास करके माइंड को सीधा ही बाहर निकाल रहे हैं। माइंड का इनपुट काम वाली बाई को नहीं, आपके मकान मालिक को एक्टिवेट करना है। आपका जब डेड बॉडी का ड्रामा करते हो, माइंड रेस्पॉन्ड कर रहा है, आपका पूरा कोचिंग जो है वो आपके माइंड पे टारगेट कर रहा है। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व, एफओसीपी इज टारगेटिंग ऑन योर इंटेलेक्ट। चेक करना, हैव यू अंडरस्टूड मैंने क्या बोला, मुझे जरूर बताना। कि आप सबके वीडियो देख लो, मेजर से मेजर जनरल तक के वीडियो देख लेना, सबके सब जो बोल रहे हैं वो मीठा मीठा बोल रहे हैं, इधर हमारे पास आ जाओ, 5 दिन में हम सिग्नेचर करा देंगे आपका, और ये करा देंगे, वो करा देंगे, हमारे डीवीडी रख लो, हमारा ये कर लो, वो कर लो। सब आपके माइंड पे टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास आ जाओ, हम तुमको 10 कमांड टास्क कराएंगे। मैं तो बोलता हूँ भैया, मैं तो रेकमेंड नहीं करा सकता आपको, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मैं नहीं करा सकता। मैं कोई भगवान हूँ क्या? आई एम नॉट गॉड यार, आई एम नॉट, आई कांट डू इट, बट आई कैन हेल्प यू वन थिंग। मैं आपके माइंड को इंटेलेक्ट के अधीन करके दे सकता हूं, ताकि आपका अंदर का घोड़ा आपके हाथ में आ जाए। एंड वंस यू डू लूप टू थिंकिंग, इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनली गोइंग टू बी इफेक्टिव, बिकॉज आपका अपना सिस्टम आपके कंट्रोल में आ गया। आज आपका मन रूपी घोड़ा आपके नियंत्रण में नहीं है, ऊपर से कोचिंग वालों ने उसके और भी बचा कुचा कंट्रोल काट दिया। सो योर एंटायर ट्रेनिंग इज इलॉजिकल, क्योंकि वो सस्ता है और मीठा है, आप भाग रहे हो। So you have to be careful about that. So once your reasoning is enhanced, so once your reasoning skills are enhanced, your ability to contribute the intellectual level at the all 3 tests, that is Manasa, Vacha and Karmana, will improve. After all, ये पूरा का पूरा जो सोच है वो आपके मानसा ही से तो आ रहा है। मानसा ही ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि मानसा इज द गंगोत्री, और गंगोत्री को आप साइड टेस्ट में लिख के दे देते हो, इंटरव्यू में बोल के दे देते हो, और जीटीओ में करके कर देते हो। तो अगर आपने इससे ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट इज वेयर द पैरेटो प्रिंसिपल हैज टू बी अप्लाइड, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑन विच द एंटायर एफओसीपी इज बिल्ट अप। सो दैट डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप चेक करना कि आप एफओसीपी वीडियो देखना, आई एम टारगेटिंग हियर, एंड यू लुक एट द अदर वीडियोस, दे विल बी टारगेटिंग एट योर काम वाली बाई। दे विल बी स्वीट टू यू, बट आई एम नॉट स्वीट। सच कड़वा होता है। So intellectual contribution मतलब once you empower your logical system inside loop 2, this will empower or build your ability to contribute towards the functional or practical aspects of the situation or the task, both in life and SSB. So SSB is a subset of life. You cannot go to the SSB doing all those TAT, PAT and all that. It's all superficial. What is the point of changing the outside if you're not touching the core? The core has to be corrected. That's a foundation.
So this involves planning, organizing, and organizing the available resource. First, you have to organize the inner resource. Second, you have to organize the outer resource. That's why under the SML we say, if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. But unfortunately, your inside world has been hijacked. You have paid to get it hijacked by people like us. So please understand, we are targeting your mind. It has to be a intelligence based training. Reasoning ability is the mother of all IQs. उस mother की बैंड बजा रखी है तुम लोगों ने. So please understand that. So 3.6% is the clearance rate as conveyed by ex-commandant selection center South. Now he's a big man and his data has to be accepted. You have to understand कि ये सही बोल रहे हो सर, क्योंकि मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो इससे भी कम था. सर्विस सेंटर में 1.5. So honor that figure 3.6. You have to come into this category, and you cannot come in the 5-day module or 14 days का कोई crash course. No, there is no crash course. Personality development माँ के गर्भ से शुरू होता है. Parenting, your school, your experience of life, there's so many dimensions. सब छोड़ के TAT में घुस रहे थे. 5 सेट करा देंगे तुम्हें. अरे 5 सेट करा के तुमको कहीं एल्युमिनियम लोहा बन सकता है? आपको सोचना पड़ेगा. मैं और वीडियो बनाऊंगा तो समझ में आएगा. इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या तरीका इख्तियार कर रहे हो देखना. जरूरी नहीं है कि हर आसान तरीका सही हो. ऑल सिंपल तरीका और शॉर्टकट तरीका आर नॉट द राइट तरीका. डोंट गेट इनटू द क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन की ट्रेनिंग में. नो, अगर 3.6 है तो बम्बू वाली ट्रेनिंग होनी चाहिए, नॉट ये प्यार वाला. सो प्लीज अंडरस्टैंड. सो आपको अपने ट्रेनिंग में चेक करना है कि ट्रेनिंग में आपके ब्रेन को अगर आपने 10 में क्लासिफाई कर दिया तो आपको अपने ब्रेन को इस साइड को मूव कराना पड़ेगा. आपको मार्किंग सिस्टम सब लोग बना बना के आजकल वीडियो डाल रहे हैं. अरे क्या मार्किंग सिस्टम है? मार्किंग सिस्टम से फर्क नहीं है. आप अपने सिस्टम को ठीक करो, मार्किंग अपने आप ठीक हो जाएगा. सो आप अपने सिस्टम को ठीक करो, मार्किंग के अंदर आ जाओगे. मार्किंग सिस्टम जानने से आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा. आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा तो मार्किंग के स्टैंडर्ड्स में आप आ जाओगे. आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टूड. पीपल आर मेकिंग मार्किंग सिस्टम और फिर गालियां गलौज भी हो रही है. मैंने भी एक बार वो गलती किया था एंड समबडी टोल्ड व्हाई आर यू डूइंग इट, आई रिमूव्ड इट. नॉट दैट कि अदर्स डोंट नो इट, एवरीबॉडी नोज इट हूएवर इज इन द सिलेक्शन सिस्टम. तो मैं मार्किंग सिस्टम पर्सनालिटी में जान के क्या करोगे? आप अपने व्यक्तित्व को उठाओगे, मार्किंग सिस्टम में आ जाओगे. मार्किंग सिस्टम को जानने से ये जंग लगा हुआ ब्रेन जो है काम नहीं करेगा. तो उसको समझना पड़ेगा. तो दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, अपने तर्क शक्ति की वृद्धि या उसमें सुधार के लिए आप क्या कदम उठा रहे हो? मुझे फीडबैक के फॉर्म में देना. मुझे फीडबैक के फॉर्म में दो. बिकॉज अगर आप ये इसको नहीं समझोगे और ये आपको फीडबैक लिखने में भी शर्म आ रहा है, दैट्स योर कॉल. कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, करना है नहीं करना. एनीवे दिस ट्रेनिंग A4 की ट्रेनिंग इज नॉट फॉर द बल्क 98%. उसके लिए वो 2% माइंडसेट, पैरेटो प्रिंसिपल, वही लोग इसको ले पाएंगे. बाकी तो सुन के बढ़िया लगेगा. कुछ तो मुझे गालियां देते हो, सर आप बिजनेसमैन हो, फोकट का ढूंढ रहे हो. कितना फोकट का खाओगे रे? आई हैव गिवन यू सो मच बट उसका कोई वैल्यू ही नहीं. बिकॉज नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई एम टॉकिंग. बिकॉज आप लोगों को सब कंफर्ट जोन है ना. 5 दिन में ऑफिसर बनने वाला. सिविल सर्विस के साथ कंपेयर कर तो शर्म नहीं आता. वो 5 साल लगाते हैं, या 5 दिन में ऑफिसर बनाने की बात करते हैं. ओ यार, बहुत मीठा बोलते हैं हम लोग यार, बहुत मीठा बोलते हैं. मच्छी पकड़ रहे हैं हम तालाब में. सो मुझे बताना, फीडबैक लिख के बताना, अपनी तर्क शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी की वृद्धि या उसमें सुधार के लिए आप क्या कदम उठा रहे हो. अरे जिसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन ठीक नहीं, जिसको साला ग्रास्प नहीं है, जिसको पिक्चर में ब्लैंक होता है, जिसको पॉजिटिव नेगेटिव मूड कुछ नहीं समझ में आता, उसकी बुद्धि जंग लगी है. उसको क्या मार्किंग सिस्टम बता के क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है. भैया याद रखना 3.6% है. 3.6. तो आपकी ट्रेनिंग ऐसा ना हो जाए प्यार प्यार में आपको ब्लैकी बना के छोड़ दें. फट्टा नहीं उठाना, लीडर बना दूंगा, ये कर देना, ग्रुप सोल्यूशन में तू ही सोल्यूशन देना, डेड बॉडी का ड्रामा. बेवकूफ़ हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है. यू रिमेंबर दिस फोटोग्राफ वीडियो मैंने बनाया था कल परसों में, कंट्रीब्यूशन वर्सेस पार्टिसिपेशन, उसमें. सो डोंट बिकम अ ब्लैकी, बिकम ब्राउनी. ब्राउनी बनने के लिए आपको अपना लूप 2 को चलाना पड़ेगा. सो एक बार आपका ये लूप 2 ठीक हो गया, वेयर द माइंड वर्क्स एज अ सबसर्वेंट टू द इंटेलेक्ट, ये वाला लूप जो चल रहा है छोटा वाला, और इंटेलेक्ट के फिल्टर के थ्रू अगर आपका सारा चीज क्वालिटी चेक हो गया, तो उसके बाद ये जो बाहर आएगा, यही सोच, दिस इज द गंगोत्री. यही गंगोत्री तो ये गंगा बन के निकल रही है. गंगा की 3 धाराएं, 3 tributaries of Gangas. What is Gangotri? What is the first tributary? Mansa. What is the second tributary? Vacha. What is the third tributary? Karmana. So this is the process. Be process oriented. You become target oriented. There's a video by director AIT, Army Institute of Technology, पुणे में है. उसका मैं लिंक चाहिए तो डाल दूंगा. Be process oriented.
प्रोसेस पे, विधि पे ध्यान दो। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला, यू मस्ट पे अटेंशन टू द मीन्स अडॉप्टेड। और आप देखो अगर अकलमंद हो तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, जीटीओ हो या इंटरव्यू हो, ये सारा एक पॉइंट से जाता है, वो है आपका ये पॉइंट। मतलब देखो ना, आपका टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी सब कुछ तो यहीं से जा रहा है। सो ये एक चोक पॉइंट है, इस चोक पॉइंट को ठीक कर लो। दैट्स पैरेटो प्रिंसिपल। दिस इज द 20% which can give you 80% result. So this is where Air Force Super is emphasizing. I don't know आपको समझ में आ रहा है नहीं है। So between the stimulus, this is the, यहाँ पे stimulus आएगा यहाँ से, between the stimulus and the response, ये response के 3 टाइप, between the stimulus and the response you have the freedom of choice। इस freedom of choice को ठीक करो, हो गया ट्रेनिंग तुम्हारा, समझ में आ जाएगा। That's why Air Force Super का ट्रेनिंग इस कड़वा है, बहुत कड़वा सच लगता है, लेकिन effective है। क्यों? Because it is not talking about the managing the world outside you, it is talking about managing the world inside you। और सवाल भी क्या पूछता है SSB, do you have it in you? तुम बोलते हो I have good TAT, no, they are not looking for good TAT, they are looking for the inner process, क्योंकि यही प्रोसेस है जो तुमको अभिनंदन बनाएगा ट्रेनिंग के बाद में। So please understand, इसके ऊपर मैं subsequently based on your video feedback, feedback के बेस में मैं इसको बनाऊंगा। So you have to, ये जंग लगा तलवार को छोड़ दो, कहानियां रटने का काम जंग लगा तलवार का। अकलमंद लड़का, वो 2% पैरेटो प्रिंसिपल वालों का अकल काम करेगा। बल्क साले गधे की तरह आते हैं, गधे की तरह, ना इंग्लिश है ना करंट अफेयर्स है, कुछ नहीं, अफसर बनना है, गधे हो गया। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। नाउ वन इज योर इनर कम्युनिकेशन, वन इज योर इनर कम्युनिकेशन। जब तक आपके इनर कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, लूप टू कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं होगा, तब तक ये मानसा वाचा कर्मणा विच इज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इसमें आएगा ही नहीं। कैंडिडेट इज द ट्रांसमीटर and the psychologist, GTO and interviewing officer is the receiver. It is the responsibility of the transmitter to make communication clear and precise so that the receiver understand। ये ऐसा कैसा ट्रांसमिशन, तुम रट्टा मारते हो और फिर उनको सुनाते हो। इट इज लाइक 3 इडियट यार। 3 इडियट वाले ने क्या किया था, पूरे ऑडिटोरियम के सामने खड़ा होकर चमत्कार पे चमत्कार बोल रहा, साला कुछ भी बोल रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा। तुम भी ऐसे एसएसबी में जाके बोल रहे हो। सोचो यार, तुम 3 इडियट के चमत्कार की तरह बात कर रहे हो। वो क्या था वो लड़का जो साला तू चुप प्राण घटना, उसका नाम ही भूल गया, व्हाटएवर, ठीक है ना। So anyway, now from Monday, that is from today onwards, today 8 p.m. onwards, we have the 2 weeks batch starting Air Force Upika from 13 to 25. So those of you interested, you can send me a WhatsApp message on this number 8275577650। बैच आज शाम 8 बजे से 8 p.m. to 10 p.m. और 2 weeks का बैच है, तो प्लीज सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर एंड आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स थ्रू दैट, है ना। इट्स अ 2 weeks बैच, तो ध्यान रखना उसका। एंड काइंडली शेयर विद दिस इंफॉर्मेशन एंड आई एम श्योर आपको 500% क्लैरिटी का दावा है, 500%। कोई अगर बोल सकता है कोई और नंबर 1 नंबर 2 मेजर से मेजर, तो मुझे बताना। 500% क्लैरिटी से परेशान कर दूंगा, इनर क्लैरिटी इतना जबरदस्त लूप टू आपका हो जाएगा कि आपको अपना इस गलतियां समझ में आ जाए। आई एम नॉट सेइंग तुम रेकमेंड हो जाओगे, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मीन्स अडॉप्टेड। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला, पे अटेंशन टू द मीन्स अडॉप्टेड। मैं 5 सेट टीएटी करा के आपको झुमका गिराने नहीं कराऊंगा, मैं तुम घिस दूंगा। तुम्हारे सिस्टम को इतना पावरफुल बनाना है, होगा या नहीं होगा तुम्हारी हाथ में। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तुम बाकी बोलते साले फल क्या, कर्म वर्म छोड़ो, फल हम दिलाएंगे। अरे पाखंडी बना दिया है पूरा। उसके अलावा 20 जुलाई से 1 अगस्त तक 2 weeks का सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विच इज द फाउंडेशन कोर्स, दैट इज ऑल्सो देयर। उसके लिए भी जो लोग रजिस्टर करना है 8275577650 में यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आई विल गेट बैक टू यू। इट्स अ 2 weeks बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जुलाई टू 1 अगस्त। The timings will be from 11:30 a.m. to 1:30 p.m. So for further details you can contact me. This is the foundation course जिसमें हम आपका रीजनिंग स्किल्स है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स एंड द वैल्यू सिस्टम, इन सब के ऊपर काम होगा। प्लस यू नो टॉपिक्स लाइक लाइफ एंड एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, फोर्स फील्ड एनालिसिस एंड असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस है ना, डिसीजन मेकिंग। मैंने 5 वो बताया था कि प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट, कॉन्शियस एंड एक और क्या था, एंड इंडिपेंडेंट विल, एक और था मैं भूल ही गया क्या है, जो भी है रिमेंबर मैंने वो किया था। इन सबको एक्टिवेट, 8 स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ द सेल्फ, लॉट ऑफ टॉपिक्स है ना, चेंज मैनेजमेंट को हाउ टू इम्प्लीमेंट,
critical thinking, creative thinking, sarvdrishti, garudrishti and all this stuff, everything will be done. उसके बाद जब SSB को करोगे मजा आएगा, बिकॉज ये पिलर्स हो गए स्ट्रॉन्ग, और पिलर स्ट्रॉन्ग तो इनका इनपुट स्ट्रॉन्ग. अभी तो पिलर ही नहीं है. अभी तो बोला जाता कोर क्वालिटी को हाइड करो. देखो ये है ट्रेनिंग, और अपने आप को बोलते हैं नंबर 1 है हिंदुस्तान में. नो, कोर क्वालिटी को कैसे हाइड कर दोगे यार? मैं तो बोलता हूँ साला कमाल है यार, छोड़ो. एनीवे, फाइनली बिफोर आई क्लोज डाउन, लेट मी वंस अगेन कोट दिस स्वामी विवेकानंद का लाइन. भैया अगर आपको गोल पाना है तो यू शुड टेक केयर ऑफ द कॉज और द मीन्स अडॉप्टेड, एंड द इफेक्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. द इफेक्ट इज रिकमेंडेशन थ्रू द एसएसबी. तड़पने से कुछ नहीं होगा, तड़पते रहोगे तो कुछ नहीं होगा. एक्शन चाहिए, एक्शन. सो लुक एट योर एक्शन, and your action has to be aligned with the goal. That's effort alignment. We'll talk about the SML, and I hope these videos are helping you. समझ में आ रहा तो मुझे बताना क्या समझ में आया. Kindly share with your friends so that they also benefit, and hope to see you in large numbers. Thank you and may God bless you. Thank you very much.